Presentation is of very great importance in good writing. Your opening paragraph should arrest the reader's attention and show him what you are writing about and why. अच्छे लेखन में पेशकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका शुरुआती पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ने वाले का ध्यान खींच ले और पाठक को ये समझ आ जाए कि आप किस बारे में लिख रहे हो और क्यों। If you are going to give the reader some information, tell him what subject you are going to deal with. अगर आप पाठक को कोई जानकारी देने जा रहे हो तो उसे बता दो कि आप किस विषय के बारे में बात करने जा रहे हो। If you are going to argue in support of a particular point of view, say what this point of view is. अगर आप किसी विशेष विचार पर बहस करने जा रहे हो तो बता दो कि ये विचार क्या है। There is no harm in startling the reader in this first paragraph by putting forward a new and apparently paradoxical point of view, provided you have convincing arguments to support it in the rest of what you write. पहले पैराग्राफ में ही कोई विरोधाभास वाला विचार पेश करके रीडर यानी कि पाठक को चौंकाने में कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते कि आपके पास ठोस तर्क हो इस विचार को साबित करने के लिए। The main body of your piece of writing should collect together and present the ideas promised in the first paragraph or give good arguments to support the view put forward there. जिन विचारों की वचनबद्धता आपने पहले पैराग्राफ में दी है वो आपके लेखन की मेन बॉडी या यूं कह लीजिए कि आगे आने वाले पैराग्राफ्स में मौजूद होनी चाहिए। You should come to the point at once. Say what you promised to say, avoiding irrelevant material, and then finish. आप एकदम मुद्दे पर आ जाएं। जो बात करने का आपने वादा किया है वही बात करें, व्यर्थ की बातें ना करें और फिर खत्म कर दें। Your last paragraph or sentence should bring what you have written to a neat, satisfying end, leaving the reader with a clear idea of what you have been saying. आपका आखिरी पैराग्राफ या वाक्य एक साफ सुथरे और संतुष्ट निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए जो पाठक को ये समझा जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। To write interestingly, you must yourself be intensely interested in what you are writing, and you must convey this feeling of eagerness to your readers. दिलचस्पी से लिखने के लिए आपको उस लेखन में दिलचस्पी होनी चाहिए जिस विषय पर आप लिख रहे हो, और यही उत्सुकता आप अपने पाठकों को भी दे सकते हो। You must also believe intensely in what you are writing and convince your readers of your honesty. जो आप लिख रहे हो उसमें आपको खुद विश्वास होना चाहिए, तो इस तरह आप ईमानदारी से अपने पाठकों को समझा पाओगे। You cannot arouse their interest and sympathy unless they feel that you yourself are interested and that you feel strongly about what you are saying. आप अपने पाठकों की सहानुभूति या उनकी रुचि अपनी ओर तब तक नहीं खींच सकते जब तक आप उन्हें ये विश्वास नहीं दिला देते कि आप खुद इस विषय में कितने इंटरेस्टेड हो और आप जो कह रहे हो आप उसमें कितने दृढ़ हो। Do not, however, force upon the reader those of your own private problems which few, if any, other people share. People are very interested in problems which they too face or which they may easily have to face in the near future, but they do not want to read the personal complainings and protests of someone whom they consider a crank or whom they suspect of being mentally unbalanced. पाठकों पर अपनी समस्याओं की कहानियां मत थोपें। लोग सिर्फ उन्हीं विषयों में रुचि लेते हैं जो समस्याएं वो खुद भी सह रहे हों, और या फिर ऐसी समस्याएं जो उन्हें भविष्य में होने वाली हों, लेकिन वो किसी की निजी शिकायतें या विरोधों के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों को पाठक सनकी या दिमाग से हिला हुआ समझते हैं। Do not strive to create an impression. Forget about yourself, think only of the reader and write naturally, avoiding self-consciousness. एक प्रभाव जमाने की कोशिश ना करें,
अपने बारे में भूलकर सिर्फ पाठक के बारे में सोचें और अपने आप को भूलते हुए कुदरती तरीके से लिखें। If you have something interesting to write about and can express it clearly, simply and with the human touch, it is sure to appeal to some classes of readers. अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो बहुत दिलचस्प है और आप इसे बहुत ही क्लियरली और सिंपल वे में, सिंपल तरीके से लिख पाएं, तो ये पाठकों की बहुत सी श्रेणियों को पसंद आएगा। But if you deliberately try to copy a style which is not your own, this will quickly become obvious to the reader. He will feel that you are not sincere and he will not go on reading what you have written. लेकिन अगर आप जानबूझकर किसी को नकल करने की कोशिश करोगे, किसी ऐसे स्टाइल को जो आपका अपना नहीं है, तो पाठक को इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि आप ईमानदार नहीं हो और वो उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे जो आप लिखोगे। As you read more and more works written in a particular style, your own will gradually change, but this will be a natural process and your new style will be yours because it comes up from your unconscious, unlike a style which you are deliberately copying. जब आप किसी और के लेखन को पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे आपका अपना स्टाइल भी बदल जाएगा, लेकिन ये एक नेचुरल क्रिया होगी और ये नया स्टाइल आपका खुद का अपना होगा। वो इसलिए क्योंकि ये स्टाइल आपके अंदर से आएगा और ये किसी की नकल नहीं होगी। This does not mean that you should not cultivate vivid expression. If you train yourself to see and hear things keenly and responsively, as an artist or a musician does, you will be able to describe them vividly yet without artificiality. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नए तरीके आजमाने नहीं चाहिए। अगर आप अपने माइंड को किसी कलाकार या किसी संगीतकार की तरह चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने के लिए ट्रेन कर लें, तो आप उस चीज़ को एक बनावटी तौर पर नहीं बल्कि एक असली तरीके से पेश कर सकते हो। It is best to write simply and in a conversational tone. Clean, plain English is the fashion these days and an elaborate, decorated style is quite out of date. लिखने का सबसे अच्छा तरीका है बातचीत के तरीके में लिखना और बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना। स्पष्ट और सादी अंग्रेजी में लिखने का प्रचलन आजकल है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर या सजा कर लिखना एक पुरानी बात हो चुकी है। Avoid jargon and officialese, hackneyed expressions, rhetorical flourishes, empty verbiage, and circumlocutions. Prefer the concrete to the abstract word whenever possible. Be definite, call a spade, and avoid euphemisms. लिखते वक्त जिन चीज़ों को नहीं करना चाहिए वो है शब्दों का जाल बुनना, दफ्तरी भाषा का इस्तेमाल करना, पुराने घिसे पिटे विचारों को पेश करना, खाली क्रियाओं को इस्तेमाल करना और कपटपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करना। ठोस शब्दों को इस्तेमाल करने की पहल करें, सच को सच कहने की हिम्मत रखें और व्यंजनों का कम इस्तेमाल करें। The latter have been called the cult of coziness, which means the pretense that everything is all right when it is not. इनमें से जो बाद वाला है वो एक enjoyment का तरीका है जिससे ये जाहिर किया जाता है कि सब कुछ ठीक है, चाहे सब कुछ ठीक हो या ना हो। In Hitler's Germany, for example, the expression special treatment was used as a euphemism for torture and murder of the most savage kinds. उदाहरण के तौर पर जब जर्मनी में हिटलर का राज था तो लोगों के ऊपर अत्याचार या उनके मर्डर को लेकर एक स्पेशल शब्द इस्तेमाल किया जाता था जिसे बोलते थे स्पेशल ट्रीटमेंट। तो ये यूफिज्म की एक एग्जाम्पल है जिसमें क्रूरता करने को एक साधारण से तरीके से बोल दिया जाता था।
आगे राइटर ने डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है चार्ल्स डिकन्स का, उसमें से एक लेटर को लिया है और उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह पहले लेटर में कॉम्प्लेक्स शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दूसरे जो लेटर आप देख पा रहे हो किताब में अपनी, वहाँ पे बिल्कुल सिंपल भाषा में उसी बात को समझाया गया है। तो राइटर के समझाने की बात ये है कि आप लोग आजकल के ट्रेंड के अनुसार जो दूसरा लेटर है जो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा गया है और उसमें घुमा फिरा के बात नहीं की है और शब्दों को इजी रखा गया है, यानी कि भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना लोग आजकल पसंद करते हैं और पढ़ना भी पसंद करते हैं। तो जब भी आप लिखने की कोशिश करें तो दूसरे लेटर की तरह बिल्कुल आसान शब्दों में लिखें और बिल्कुल ईजी रखें अपने सब्जेक्ट मैटर को, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। Avoid stating the obvious. For example, your readers do not want to be told that airplanes sometimes crash or that children learn from their parents as well as from their teachers. Obvious सी बातें यानी कि जाहिर सी बातों को बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कभी कभी जहाज़ क्रैश भी हो जाते हैं या बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स से भी सीखते हैं, तो ऐसी बातों का रीडर्स को पहले ही पता होता है। Use the same style throughout whatever you are writing. If you are writing formally, do not introduce slang expressions. And if you are writing in a conversational style, do not introduce literary or learned expressions. पूरे लेखन प्रक्रिया में एक ही स्टाइल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कुछ औपचारिक यानी कि फॉर्मल लिख रहे हो तो उसमें स्लैंग यानी कि अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, और अगर आप कुछ बातचीत के तरीके का कुछ लिख रहे हैं तो उसमें कुछ साहित्यिक ना लिखें। A mixture of styles such as the following is absurd. In the absence on home leave of my boss, your application for sympathetic consideration of your claim to a pension has been pushed on to me. I have had no alternative but to give it the thumbs down, owing to the fact that your old man had ceased to be in the service of Her Majesty when he kicked the bucket. Styles को mix करना गलत है। ये जो इंग्लिश की लाइंस आप पढ़ पा रहे हो, इनमें राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि बात को सीधे तरीके से भी किया जा सकता है। बहुत से स्टाइल्स को अगर मिक्स करके आप लिखने की कोशिश करोगे तो वो एक खिचड़ी सा बन के रह जाएगा। If while you are writing you cannot think of the right word at once, it is good idea to put in another or to leave a blank so as not to interrupt your flow of thought. लिखते वक्त अगर कोई शब्द आपके जहन में, आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा है तो ये अच्छा होगा कि आप उस शब्द की बजाय कोई और शब्द का इस्तेमाल कर लें या फिर उस जगह को खाली छोड़ दें, ताकि आपके विचारों का फ्लो इंटरप्ट यानी कि बाधित ना हो। And when you have finished, you can go back and find exactly the right word for what you are trying to say. और फिर जब आप अपने लेखन को खत्म कर लेंगे तो आप वापस जाके उसी शब्द को खोज पाएंगे जो आप वहां पे कहना चाहते थे। In any case, read your work over critically after you have finished it, replacing weak, vague, inexact words by others which say just what you mean. हमेशा अपने लिखे हुए काम को आलोचनात्मक तरीके से पढ़ें। कमजोर और अस्पष्ट शब्दों को बदल दें ताकि आप जो कहना चाहते हैं वो सबको समझ आ जाए। तो ये था चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग बाय L.A.HILL, जिस चैप्टर को मैंने 2 वीडियोस में बनाया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और सपोर्ट मिलती रहे और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता रहूं। प्लीज़ शेयर द वीडियोस विद अदर एंड हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। थैंक यू सो मच।